Welcome everyone. I'm the NEET Core Team Leader, Astron Institute of International Study, Gurgaon. So today we have webinar on stress management. So before starting the webinar, I'll give you a short introduction about the company. We are 18 years old company focused on planning, designing, also doing quality accreditation for the hospital by doing NAPH and JCI. We are offering 50 plus certified and diploma programs for nurses and paramedical technicians, adopting our blended approach with major focus on practical learning through on-job training. Right now, more than 10,000 plus nurses are certified and well-placed at national and global level in reputed organization with the NABIT ISO 17024, and also proud to tell you that now we are training partner with Skill India. So now I'm going to introduce Dr. Tanuja Kaushal. She is Dr. Tanuja Kaushal is an RCI licensed clinical psychologist, gold medalist, practicing in Gurgaon. She did her PhD from the Department of Psychiatry, AIMS, New Delhi, and did her MPhil clinical psychology from GMCH, Chandigarh. Dr. Kaushal has more than 10 years of work experience. She has served actively to mental health needs of adults in the field of mental health in community setting, OPDs and IPDs of India's most prestigious government hospital. She has more than 10 peer-reviewed publications at various national and international conferences. Apart from receiving many Best Research Paper awards, she has various awards from national conferences, including B.B. Sethi Award, P.C. Boral Award, V.K. Verma Award, and S.C. Gupta Award. Dr. Kaushal has served as member of published by the Ministry of Health and Family in collaboration with Rashtriya Bal Swasthya Karyakram 2014. She was selected among one of the few Indian candidates to attend the 5th International Workshop on Psychological Intervention after Disaster organized at Manila, Philippines in 2016. So now it's over to you, ma'am. You can start the webinar. Thank you so much, Harneet. My heartfelt thanks for your kind and thoughtful introduction. Thank you so much. I want to take this moment to welcome nurses. I want you all to know that your commitment to care makes a big difference. And we are here to support you in managing the stress that comes with this important work. Before today's topic on nurses' health, I want to share something very personal with all of you. So I was sharing this personal journey with the nurses while I was working in the hospitals. While I've seen the dedication and resilience that every one of you, all the nurses show, I've also seen the toll that this relentless responsibility takes on your mental well-being. So in 2014, I joined AIMS New Delhi Department of Pediatrics. And join Karte, the first group of people that I quickly found myself drawn to was the nurses. They were so welcoming, always peppy and chirpy. They were always the one who helped me get adjusted and feel at home. मुझे नर्सेस के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था ड्यूरिंग माय ओपीडी एंड आईपीडी ड्यूटीज एंड मेरी सीनियर थी एक डॉक्टर सविता सापरा शी यूज्ड टू से कि तनुजा तुम बार बार नर्सिंग स्टेशन क्या करने जाती हो अब उन्हें ये तो नहीं कह सकती थी कि कुछ मिनट्स मैं रिलीफ के लेने जाती हूँ सो आई वुड जस्ट लाफ इट ऑफ धीरे धीरे मेरा बॉन्ड 2-3 सिस्टर्स से वहां पे काफी बढ़ गया ओपीडी में एंड अगर मैं ओपीडी में कहीं नहीं मिलती थी तो एवरीबडी वुड गो टू दी नर्सिंग स्टेशन those moments that I would spend with nurses became a refuge for me. One of the nurses there, I would not like to name her. I'm calling her Sister Ji. So एक दिन ऐसी टी ब्रेक में मैं नर्सिंग स्टेशन पे गई चाय लेके एंड सिस्टर जी वॉज सिटिंग देयर उनका सिर उन्होंने नीचे किया हुआ था चुप करके बैठी थी तो मैं पास में जाके बैठी और मैंने उनको मस्ती में पूछा क्या हुआ है ऐसे क्यों बैठे हो आप तो आई वॉज सरप्राइज टू सी उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था आईज बिल्कुल टायर्ड थी शी जस्ट लुक्ड एट मी एंड शी सेड कुछ नहीं बस थक गई हूँ इट वॉज 11 a.m. in the morning. She then took a deep breath, and at this point of time, I could sense that this moment was different. सिस्टर जी बिना पूछे ही अपनी फीलिंग्स शेयर करने लग गई मेरे साथ कितने लंबे वर्किंग आवर्स हैं फैमिली और बच्चों के लिए समय नहीं मिलता समटाइम्स सीनियर्स भी आकर डांट देते हैं समटाइम्स तो पेशेंट्स के सामने डांट देते हैं बहुत ही थैंकलेस सा जॉब लगता है आई थिंक वी इंटरेक्टेड फॉर अ गुड 10-15 मिनट्स लेकिन इस पूरी कॉन्वर्जेशन में
सिस्टर जी ने बात की पेशेंट केयर के बारे में, फैमिली के बारे में, उनके आसपास के डॉक्टर्स के बारे में, लेकिन उन्होंने अपने बारे में कोई बात नहीं की। लाइक मैं आई वाज वेटिंग फॉर हर टू से कि मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, बट शी नेवर सेड दैट. मे बी दैट वाज नॉट इवन ऑन हर माइंड. What struck me the most was how familiar her story was. Over 10 years that I've spent in government hospitals, I have heard similar experiences from so many nurses that I've worked with. These are the people who give so much of themselves to others that they often have very little left for themselves, for their own. Today, I'm here not only as a clinical psychologist, but as someone who has witnessed the strength, the challenges that nurses face. This is not just a professional discussion for me, it's deeply personal for me. I've seen the sleepless nights, the emotional strain, and the unspoken pressures that you all go through. So today, let's make this space not just about discussing mental health, but about empowering each and every one of you to take care of yourselves with the same compassion you offer to others. Let's take a moment to understand our stress levels. I want all of you to read these questions carefully and respond with a simple yes or no in your mind. For every yes answer, give yourself a score of 1. This is completely confidential. You don't have to share the score, but just keep the score in your mind. Let's take a few minutes, read these questions, and count your yes. If your score is 5 or more, there's a very high chance that you may have some symptoms of anxiety or depression, psychological distress, or even some morbidity may be there. If your score is 5 or above, then please give careful attention to the upcoming slides because we are going to discuss some crucial ways to reduce your distress. If your score is below 5, then also I want that you please pay attention because these techniques will help you and your loved ones in preventing to experience heightened distress. We don't want that your score ever reaches a 5 if it is below 5 right now. Firstly, we'll understand what is stress. Stress is like a pressure cooker. Just as a pressure cooker builds up steam to cook food faster, stress can motivate us to meet deadlines and tackle challenges. However, if the pressure cooker becomes too high, if the pressure becomes very high and there is no relief, the cooker can explode. Just as prolonged stress can lead to burnout or emotional overwhelm, it's essential to find ways to release that pressure. While some level of pressure is required to cook your favorite rajma, chole, sabzi, alright, so how much stress is okay is what we are discussing right now. As I said that while some level of pressure is important for all of us, even for the favorite rajma to be cooked, some level of pressure is required. But if the pressure is occurring without the release, then it is problematic. Some level of stress, good for performance. Excessive or prolonged stress, on the other hand, without the release, can lead to exhaustion and can also result in burnout or compassion fatigue. Now, stress का मतलब हमेशा sadness, चिड़चिड़ापन या anxiety नहीं होता. Sometimes the stress can show itself in the form of chronic fatigue. Stress can cause sleep disturbances, mood swings, or even skin problems. Other symptoms of stress can include racing thoughts, difficulty concentrating, social withdrawal, excessive screen usage, increased consumption of alcohol or smoke. These hidden symptoms are important clues that stress is affecting us. Even if we don't, who is a nurse in a busy emergency department, she reported with feelings of being overwhelmed by her workload and struggling to balance her professional and personal life. She reported emotional exhaustion, frequent headaches, irritability, and poor sleep. At work, her performance had declined, leading to mistakes and conflicts with colleagues. At home, she felt disconnected from her family and guilty for not being present. The ongoing stress, so stress levels can lead to difficulties like headache, poor sleep, irritability, and anxiety. Just like we talked about pressure cooker without the release, similarly, prolonged stress, emotional exhaustion, lack of support can lead to feeling drained, detached, withdrawal,
और इश्यूज लाइक हाइपरटेंशन, दिस इज कॉल्ड बर्नआउट। ये एक कोपिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकता है बर्नआउट से बचने के लिए। नर्सेस को इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में, इतनी टफ कंडीशंस में काम करना पड़ता है दैट दिस टफ लव समटाइम्स ये उनका एक कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है कि एक्सटर्नली एकदम टफ और इंटरनली मे बी दे आर ट्राइंग टू मास्क उनका जो डीप इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, उसको शायद वो मास्क करने की कोशिश कर रही हैं बाय becoming showing herself as a very tough person. This can also be a result of a lot of stress and burnout stage, which a lot of nurses and all of us as healthcare workers we experience. और अगर आपने देखा हो कि दोनों नर्सेस के बिहेवियर में, बॉडी लैंग्वेज में, टोन वॉल्यूम में कितना अंतर था, तो आप समझ पाएंगे कि हु इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, किसके ऊपर ज्यादा प्रेशर है और किसके ऊपर प्रेशर उतना नहीं है, स्ट्रेस शायद उतना ज्यादा नहीं है। जैसे हमने गुड स्ट्रेस की बात की, तो मे बी हर स्ट्रेस लेवल इज ओके, मैनेजेबल, विच इज लीडिंग टू अ गुड परफॉर्मेंस। बट ऑन द अदर हैंड सिस्टर मार्था इतने ज्यादा प्रेशर में है, शायद बर्नआउट स्टेज अकर हो चुकी है, इसीलिए उनका इतना एक्सटीरियर जो है टफ लग रहा है हमें। तो समझिए कि आप लोग एक स्पॉन्ज की तरह है। जो एक्चुअली स्पॉन्ज है, इट विल नॉट बी एबल टू टेक मोर वाटर और absorb नहीं कर पाएगा, इट विल बी फुल हैवी, अनएबल टू टेक एनीथिंग न्यू। इन द सेम वे नर्सेस जो कॉन्स्टेंटली इमोशनल वेट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, पेशेंट्स का, फैमिली मेंबर्स का, डॉक्टर्स का, उनका अपना घर है, अपना परिवार है, अपने खुद के इमोशंस है, इतना सब कुछ वो प्रोसेस कर रहे हैं, रिकवरी के लिए टाइम ही नहीं है, इतनी शिफ्ट्स हैं, डे एंड नाइट दे आर वर्किंग, सो दे कैन वेरी इजिली दे कैन रीच दिस पॉइंट ऑफ बीइंग इमोशनली ड्रेन्ड। इतना ड्रेन हो जाते हैं कि एम्पैथी उनसे हम एक्सपेक्ट करें तो कैसे एम्पैथी उनसे एक्सपेक्ट करें, उनका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। अभी तक हमने समझा कि स्ट्रेस क्या है और ये हमारी इमोशनल फिजिकल हेल्थ को किस हद तक अफेक्ट कर सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस स्ट्रेस को खुद से दूर रखने और इस स्ट्रेस को मैनेज करने के क्या तरीके हैं। ओके, सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट प्राइमरी मैनेजमेंट, जो कि मतलब प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं कि स्ट्रेस हमारा हाइटन ही नहीं हो। ये हम सबको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, वेदर वी हैव स्ट्रेस और नॉट, वी शुड डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट दीज टेक्निक्स इनटू आवर डेली लाइफ। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल। मैनेजिंग स्ट्रेस इज नॉट जस्ट अबाउट मेंटल हेल्थ टेक्निक्स, बहुत बड़ी बड़ी टेक्निक्स के बारे में नहीं होता है हमेशा। जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, सिंपल येट वेरी इफेक्टिव टेक्निक, जैसे आई ऑलवेज से कि भगवान ने बहुत सारी दवाइयां जो है हमारे सिस्टम के अंदर डाल के भेजी है, हमें जरूरत है तो उनको सिक्रीट करने की, विच वी कैन डू थ्रू दीज वेरी सिंपल टेक्निक्स, वेरी पावरफुल टेक्निक्स। द फर्स्ट वन इज रेगुलर एक्सरसाइज, जिससे कि एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और उससे हमें बहुत रिलैक्स्ड भी फील होता है, एनर्जाइज भी फील होता है। बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो 20 मिनट चलिए, 15 मिनट प्राणायाम कीजिए, 4000 स्टेप्स कंप्लीट कीजिए अगर 10,000 नहीं कर सकते हैं। Second is getting enough sleep. Sleep is very crucial for our brain to recover and handle stress better. So follow a very good sleep hygiene, even if your shifts keep on changing. So simple तरीके, मॉर्निंग में मत सोइए, कैफीन अवॉइड कीजिए, बेड पे जाने और निकलने का समय बांधिए, स्क्रीन को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट इज गुड न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट लीजिए, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उससे हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है। न्यूट्रिशन, स्लीप, दे आर फ्यूल फॉर आवर बॉडी, और वो हमें मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से या स्ट्रेस से निपटने की हमारी क्षमता बढ़ाते हैं, कोप अप करने की जो क्षमता है हमारी इंक्रीज करते हैं। लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहल एंड स्मोक को लिमिट कीजिए, अवॉइड कीजिए तो बहुत अच्छा है, कंप्लीटली इरेडिकेट कीजिए अपनी लाइफ में से। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो लेसन कीजिए उसको, क्योंकि ये स्ट्रेस को वर्सन करता है, स्लीप को डिस्टर्ब करता है। सो वेरी सिंपल हैबिट्स बट दे कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन मैनेजिंग स्ट्रेस इफेक्टिवली। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत एसेंशियल है स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। बहुत ही एक बढ़िया सा टूल है जिसे हम बोलते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स। आइजनहावर मैट्रिक्स में टास्क को हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आप एक लिस्ट बनाइए, आपको क्या क्या टास्क करने हैं, उस लिस्ट के हर टास्क को आप इन चारों में से किसी एक बॉक्स में पुट कीजिए। जैसे फर्स्ट बॉक्स है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है तो अभी कर दीजिए उस काम, वेट मत कीजिए। इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है तो बाद के लिए प्लान कीजिए। थर्ड इज इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है तो कोशिश करो कि किसी को डेलीगेट कर पाओ, किसी कॉलीग को या किसी फ्रेंड को या किसी फैमिली मेंबर की सहायता ले सकते हैं तो उसको डेलीगेट कीजिए। और अगर इंपॉर्टेंट नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है तो या तो छोड़ दो या उस काम को कम करो।
सो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। इसी तरह से कुछ और रिकमेंडेशंस है, जैसे कि स्मार्ट गोल सेट कीजिए। स्मार्ट का अर्थ है स्पेसिफिक होना चाहिए गोल, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। इट कैन कीप यू फोकस्ड एंड ऑन द ट्रैक। सेकेंड इज प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड कीजिए। मतलब काल करे सो परसों कर, नरसों कर, वो नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी करो, राइट नाउ। और प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने का इजीएस्ट तरीका है कि इंटायर टास्क को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर, काट कर एक स्टेप को एक बार में करने की कोशिश करो। नेक्स्ट इज आजकल बहुत सारे कैलेंडर्स एप्लीकेशंस आ गए हैं विच कैन हेल्प यू कीप योरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। तो टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट, लर्निंग टू से नो टू नॉन एसेंशियल टास्क। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के जमाने में। मना करना चीजों को जो आपके बस से बाहर है या जो आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, स्पेस नहीं है, तो ना कहना सीखिए। यूजिंग अ टू डू लिस्ट हेल्प्स यू कीप योर प्रायोरिटीज क्लियर। टू डू लिस्ट मेंटेन कीजिए, एवरीडे मॉर्निंग में लिखा कीजिए ये 4 टास्क मुझे आज करने। लास्टली, रेगुलर ब्रेक्स लीजिए, इससे आप बर्नआउट से बच पाएंगे। मूविंग अहेड, अब हम बात करेंगे सोशल सपोर्ट की। सोशल सपोर्ट सिंपली इसका मतलब है हेल्प लेना, केयर लेना, कंफर्ट सीख करना हमारे आसपास के लोगों से, फ्रेंड्स, फैमिली और इवन कॉलीग्स। ये सपोर्ट इमोशनल हो सकता है, जैसे कि एक दूसरे की बात सुनना, समझना। प्रैक्टिकल सपोर्ट हो सकती है, अपने कॉलीग्स की हेल्प लेना एक्चुअली। या फिर इंफॉर्मेशनल, यानी कि जैसे हम अपने सीनियर से एडवाइस लेते हैं, या हम अगर सीनियर है तो हम अपने जूनियर्स को एडवाइस दे सकते हैं। और just simply chit chatting, laughing, enjoying with your colleagues and your friends, which is called companionship. So social support से क्या होता है, हम कनेक्टेड फील करते हैं, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है, हमारी ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव होती है। सोशल सपोर्ट का मतलब केवल ये नहीं है कि आप अच्छे, पॉजिटिव, सपोर्टिव लोगों से जुड़े रहें। इसका मतलब ये भी है कि जो सो कॉल्ड टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास, उनसे भी डिस्कस कीजिए। सो जैसे एक पौधे को फलने फूलने के लिए, बड़ा होने के लिए ना केवल सनलाइट, खाद, पानी, केयर की जरूरत है, बल्कि उसको वीड से भी हमें प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है। इसी तरह हमें अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए ना केवल अच्छे सोशल सपोर्ट की जरूरत है, बल्कि जो इस तरह के टॉक्सिक लोग हैं, प्रॉब्लमैटिक, नेगेटिव लोग हैं, उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना भी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। फाइनली रेजिलियंस की बात करेंगे। रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस है, देखो, प्रॉब्लम हम सबके लाइफ में है, लेकिन प्रॉब्लम से लड़के हम वापस अपने नॉर्मल लाइफ में कितनी जल्दी वापस आते हैं। एबिलिटी टू बाउंस बैक इज कॉल्ड रेजिलियंस। सो क्या करना चाहिए इसके लिए? ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कीजिए। ग्रोथ माइंडसेट का क्या अर्थ है? यानी कि कोई चैलेंज अगर आ गया तो उस चैलेंज में कोशिश करो ढूंढने की कि इसमें कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी है, तो वो क्या है। या अगर फेलियर आ गया, सबकी लाइफ में आता है फेलियर, तो उस फेलियर में मेरी लर्निंग्स क्या है, उन लर्निंग्स पे आप फोकस कीजिए, फेलियर इटसेल्फ पे नहीं। नेक्स्ट इज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रेटिट्यूड यानी कि रिफ्लेक्ट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन के ऊपर। आई कैन गारंटी कि सबसे मुश्किल और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन या पर्सन में भी ना आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिल जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा आपको देख लो। कैन बी आप किस पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहे हो, उस पर्सन में मे बी ह्यूमर है जिसको आप लाइक नहीं करते हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस पे वो कॉफी बहुत अच्छी मिलती है आपके कैंटीन में। कुछ भी अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जो है वो हमारा अटेंशन को शिफ्ट करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। फाइनली जो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी है, साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जैसे एक पेड़ है, बहुत बारिश तूफान में पेड़ कैसे खड़ा रहता है, अगर बारिश तूफान आ रहा है वो थोड़ा हिलता है, डुलता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। यही साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम्स आती हैं सबकी लाइफ में, लेकिन जो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमें सिखाता है कि कैसे आप अडेप्ट कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज कीजिए, ग्राउंडेड रहिए, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट, वो हिलते हुए पेड़ की तरह एडजस्ट कर लीजिए अपने आप को टुवर्ड्स द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ। So by doing these three things, we can actually improve our resilience, our ability to bounce back. Now, let's do a small activity. We have come to the end of the primary stress management, at least. Primary हमने discuss कर लिया है. Now, we'll do an activity called three good things. ये gratitude based activity है. It can help you in improving the overwhelming feeling that we experience sometimes. So, सभी थोड़ा सा 20-30 सेकंड लीजिए और सोचिए
कि आज के दिन में अभी तक कोई भी छोटी से छोटी 2 से 3 अच्छी चीजें जो आपके साथ, थिंक अबाउट एनी 3 गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू टुडे टिल नाउ। बहुत छोटा भी हो सकता है, आपने फ्लावर्स देखे, आपने छोटे बच्चे को हंसते हुए देखा, किसी पेशेंट ने आपको अच्छा फीडबैक दिया, थैंक यू बोला, कुछ भी छोटा या बड़ा हो सकता है। Please take your time, take your 30 seconds, think about 2 to 3 good things that have happened. And if any one of you wants to share, I would love to listen. कोई अगर comfortable feel कर रहा है तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिए, ये जो भी चीजें आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अभी तक अच्छी हुई हैं आज के दिन में। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। एनीबडी हु वांट्स टू शेयर, कोई शेयर करना चाहता है उनका कोई भी एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंट आज का? एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स? Yeah, today I was in hospital duty. My name is Diksha Parab. या दीक्षा। So I was in a hospital duty today. So ओके। I was assigned with 1103 patient. She just asked me whether I'm from where I am, like what is my native place, and I told her that I am from Sawantwadi. So just I met her that she was also from the same place, and she ओह, was just discussing very happily about her village and everything, discussing with me. And she is a known case of CKD patient. She was in very large stress, done with an ascitic tapping today. And like I just loved talking to her. So half of my stress also went वाह, that talking to her because literally I was in very much right. But today it was a good thing which I felt. वेरी So नाइस। I was happy. That's lovely. Thank you so much, Diksha, for sharing. Anybody else who wants to share? This is a beautiful moment that Diksha ma'am has shared with a patient today. Anybody else who wants to share? Okay, so we are moving forward. But before that, I want to share my best moment. My best moment for the day is that I'm conducting this webinar for Astron, and I'm having to, I'm getting this opportunity to talk to all of you. I think this is my best moment of the day today. Anybody else who wants to share? Otherwise, we'll move ahead. All right. So moving ahead, we are now going to talk about secondary stress management. सेकेंडरी स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है जो हम एडिशनल एक्शंस लेते हैं अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी मैनेजमेंट टू एड्रेस द ऑनगोइंग इश्यूज टू इनहैंस सॉल्यूशंस। तो प्राइमरी तो हमें करना है, बट उसके अलावा दीज आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक। नाउ आई रियली वांट यू ऑल टू पे अटेंशन टुवर्ड्स सेकेंडरी स्ट्रेस मैनेजमेंट बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू very practical and very helpful tools which can help you in managing your stress on day-to-day basis and otherwise in long term also. So पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, पहले हम समझेंगे कि स्ट्रेस रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस क्या है और ये क्यों जरूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। सेल्फ अवेयरनेस, द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू बिकम अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स। फॉर इंस्टेंस यू माइट नोटिस के कॉन्स्टेंटली आप ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, आप इरिटेबल फील कर रहे हैं। इसको नोटिस करना शुरू करो पहले तो अपने इमोशंस को। नेक्स्ट इज सोर्स आइडेंटिफाई कीजिए अपने स्ट्रेस का, कहाँ से आ रहा है। हो सकता है ये डेडलाइन से आ रहा हो, रिलेशनशिप से आ रहा हो, या फिर आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन कि मैं बहुत बढ़िया, मैं परफेक्ट काम मुझे करना है, मुझे हर एरिया में टिक मार्क चाहिए लाइफ के। ये रिकॉग्नाइज करना कि स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, स्ट्रेस को डील करने में हमें इजी हो जाएगा अगर हमें उसका सोर्स पता है। थर्ड इज एक्सेप्टेंस। वंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्या मुझे स्ट्रेस हो रहा है, इसका ये सोर्स है, रादर देन फाइटिंग अगेंस्ट इट, आपको ये कहना है खुद को इट्स ओके टू फील दिस वे। इट्स ओके, मेरा अभी टफ टाइम चल रहा है, टफ टाइम में किसी को भी ऐसा फील होगा जैसा मुझे फील हो रहा है। तो डोंट रब ऑफ योर फीलिंग्स, एक्सेप्ट योर फीलिंग्स। एक्सेप्टेंस एक्चुअली जो इंटरनल स्ट्रगल हमारा चल रहा होता है ना, मुझे नहीं ऐसे फील करना, मुझे एंशियस नहीं फील करना, मुझे प्रेशर नहीं लेना, वो इंटरनल स्ट्रगल आपका कम हो जाता है एंड इट एक्चुअली एम्पावर्स यू। फाइनली द लास्ट इज टू टेक नेसेसरी एक्शन। जब आपको पता है मैं एंशियस फील कर रहा हूँ, मुझे उसका सोर्स भी पता है, वो एंजाइटी कहाँ से आ रही है, वो डेडलाइन से आ रही है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है डेडलाइंस के समय सबको एंजाइटी फील हो सकती है, अब मैं कुछ कर सकता हूँ इसका। तो द फाइनल स्टेप इज क्या आपको करना है टू डील विद दिस एंजाइटी। मे बी आपको बाउंड्री सेटिंग करने की जरूरत है वर्क प्लेस पे, या कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप प्रैक्टिस कीजिए, या फिर दोस्तों से या कलीग से थोड़ा सपोर्ट ले लीजिए।
दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ सेकेंडरी स्ट्रेस मैनेजमेंट. सेकेंड इज कोपिंग स्ट्रेटजीज. अभी कोपिंग स्ट्रेटजीज का अर्थ है कि चैलेंजेस, जो लाइफ के हमारे चैलेंजेस, स्ट्रेसर जो हमेशा डे टू डे हम सबके लाइफ में चलते हैं, उनसे डील करने के टूल बॉक्स. जैसे कि मारुति को ठीक करने का एक अलग टूल बॉक्स है, मर्सिडीज को ठीक करने का एक अलग टूल बॉक्स है. इसी तरह इमोशनल और मेंटल टूल्स हमारे पास जो होते हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज जो होती हैं, वो हमें जो मुश्किलें हमारी लाइफ में, जो स्ट्रेसेस हमारी लाइफ में, उनका सामना करने में हमें ये स्ट्रेटजीज हेल्प करती है. तो मेजरली दो तरह की कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं. पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, यानी कि प्रॉब्लम को डायरेक्टली हैंडल करना. जैसे कि इसमें क्या कर सकते हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में नेगोशिएट कर सकते हैं. जैसे मान लो बच्चों का केयर है, तो पार्टनर से आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि आप थोड़ा होमवर्क देख लीजिए, मैं बच्चे को पिक एंड ड्रॉप कर दूंगा. या फिर अगर आप अपनी ड्यूटीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप अपने को नर्स से डिस्कस कर सकते हैं कि आप ये मेडिकेशन टेक केयर करो, मैं डॉक्यूमेंटेशन अपडेट कर देता हूँ, समथिंग लाइक दैट. एंड इन्फॉर्मेशन सर्च आउट कीजिए, अपने आप को अवेयर रखिए ज्यादा से ज्यादा. दूसरा तरीका है कोपिंग का, इमोशन फोकस्ड कोपिंग. यानी अगर आप स्थिति को नहीं बदल सकते, सिचुएशन को आप नहीं बदल सकते, फॉर एग्जाम्पल आपके हॉस्पिटल का मैनेजमेंट टॉक्सिक है, तो यू कांट चेंज दैट, बट हम अपना रिएक्शन उनके प्रति बदल सकते हैं, हम अपने इमोशंस को मॉड्यूलेट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? सोशल सपोर्ट सीख करके, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करके, या जर्नलिंग, राइटिंग करके अपने इमोशंस के बारे में. तो उससे क्या होगा, हमारा इमोशनल रिएक्शन चेंज हो जाएगा, हमारे इमोशंस मॉड्यूलेट हो जाएंगे. वी विल फील रिलैक्स, वी विल बी लेस बॉदर्ड अबाउट दैट टॉक्सिक सिचुएशन. सो दिस इज कोपिंग स्ट्रेटजीज. नाउ we'll take a moment and we will think कि ये एक नर्स का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बताइए कि इनके लिए, रूपम के लिए कौन सा कोपिंग मैकेनिज्म आपके हिसाब से बेस्ट रहेगा. सो रूपम जो है, बहुत ही लॉन्ग शिफ्ट्स है इनकी, बहुत ही बिजी हॉस्पिटल में काम करती हैं ये, बहुत थकी है, परेशान है, बहुत सारा डिमांडिंग जॉब है इनका, फटीग है, एंजाइटी है, टाइम नहीं मिल रहा है रिलैक्सेशन का, अपने आप की केयर करने का. तो आप मुझे बताइए कि उनके लिए बेस्ट वे आउट क्या है. एक्सरसाइज करना ताकि उनका मूड और एनर्जी अच्छा रहे, थोड़ा अल्कोहल ले लेना चाहिए, एक दो पेग लगा लें इवनिंग में, थोड़ा चिल हो जाएगा. या ट्रस्टेड कलीग्स के साथ शेयरिंग करना, बात करना, अपने एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को शेयर करना. आपको क्या लगता है कि बेस्ट उनके लिए क्या रहेगा? प्लीज शेयर. आप बताइए. ए बोल रही है सोनिया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. सोनिया इज राइटिंग ए वुड बी द बेस्ट. ओके, एनीबडी एल्स? C. Diksha is saying C. Okay. Garima is also suggesting C. Anybody else? Manisha, Meena is saying C. Okay, great. Pratibha is also suggesting C. Great. Wonderful. All right. Thank you so much for giving your inputs. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सभी ठीक कह रहे हैं. देखिए, सी वुड बी द बेस्ट केस सिनेरियो, बिकॉज उनका, जैसे कि हमने वो केस में लिखा, तो उनके पास टाइम ही नहीं है, तो एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, रिलैक्सेशन का टाइम ही नहीं वो निकाल पा रही है. लेकिन वर्क प्लेस पे तो हम जा रहे हैं, वहां एटलीस्ट ट्रस्टेड कलीग से हम बात कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं. जैसे कि अभी दीक्षा ने बोला कि उन्होंने वो पेशेंट से छोटा सा चैट किया और उससे उनका भी स्ट्रेस रिलैक्स हो गया. तो एक सिंपल सी टेक्निक, सिर्फ बात करने से कितना जो हमारा बर्डन है, जो हमारा प्रेशर बिल्टअप है हमारे हेड में, वो कैसे रिलीज हो जाता है, प्रेशर कुकर का स्ट्रेस. सो सी वुड बी द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, ऑल्दो ए इज ऑल्सो गुड आइडिया इफ द पर्सन हैज टाइम. आई टोटली अग्री. ऑलराइट, मूविंग ऑन. देखिए, ये तो आपको बहुत सारे लोग बता देंगे कि क्या करना चाहिए स्ट्रेस में, लेकिन ये भी ध्यान में रखिए प्लीज कि क्या नहीं करना चाहिए स्ट्रेस में. सब्सटेंस नहीं लेना है, अपने आप को अकेला नहीं छोड़ना है, ओवर ईटिंग अंडर ईटिंग नहीं करना है, इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, नेगेटिव सेल्फ टॉक को अवॉइड करना है, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड नहीं करना है, अगर कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायर्ड है तो थोड़ा बहुत करना चाहिए, स्लीप को स्किप नहीं करना है, और माइंडलेस डिस्ट्रैक्शन, शॉपिंग कर लो, स्क्रीन देख लो, उन सब से हमें यूज नहीं करना है स्ट्रेस को डील करने के लिए. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट डू व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉग्निटिव चेंजेस, यानी थॉट्स की चेंजेस. देखिए, देखा जाए एक पर्सपेक्टिव से तो द मेजर कल्प्रिट्स आर थॉट्स. थॉट्स ही सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं. अगर थॉट मुझे कह रहे हैं भाई मैं इतना काम कैसे करूंगी, बस इस थॉट से मुझे एंजाइटी होगी. अरे ब्रेन एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम इतना काम कैसे करोगी, प्लान दे दो भाई. तो अगर मुझे 8 चैप्टर कवर करना है और मेरे पास 4 दिन है,
तो हाँ, मैं 2-2 चैप्टर करके 4 दिन में कवर कर। दिस इज द सिंपल आंसर, बट वी विल गेट ओवरवेल्म्ड बाय दिस थॉट, कैसे करोगी, कैसे करोगी? एंड नॉट ऑल थॉट्स आर फैक्ट्स, सम थॉट्स आर जस्ट ओपिनियंस, they are ever changing. So we'll discuss one example here. So the thought, for example, मुझे थॉट आ रहा है, आई एम ओवरवेल्ड, बहुत ओवरवेल्ड हूँ। क्या इमोशन फील करूंगी मैं इस थॉट की वजह से? एंजाइटी होएगा, फटीग होएगा, थका थका फील करूंगी। और क्या बिहेवियरली क्या करूंगी? जल्दी जल्दी काम करने लगूंगी, रश थ्रू द टास्क, फटाफट फटाफट फटाफट। और जब हम फटाफट 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 काम करते हैं, वो भी एंजाइटी और फटीग के चलते, और थॉट में क्या चल रहा है, आई एम ओवरवेल्ड, तो क्या होगा? मिस्टेक्स, गलतियां होंगी। और गलतियां होंगी तो क्या होगा? और ज्यादा ओवरवेल्ड हो जाएंगे। तो थॉट्स को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि वेदर जो है हमेशा सेम नहीं रहता है। अभी बरसात हो रही है, काले बादल छाए हुए हैं, तो बहुत जल्दी क्या होगा? सन भी आ जाएगा। थॉट्स भी ऐसे ही हैं, अभी नेगेटिव है, थोड़ी देर में पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम इस पासिंग नेगेटिव क्लाउड को, नेगेटिव थॉट को सोचते हैं कि यही रियलिटी है, दिस इज इट, यही फाइनल है। ऐसा नहीं होता। Thoughts are ever changing, In a day, we experience almost 40,000 thoughts we can experience. They are always changing. So जैसे storms पास हो जाते हैं, सनशाइन होता है दोबारा से, इसी तरह नेगेटिव थॉट्स भी टेम्परेरी हैं। उनको हमें अलाउ नहीं करना कि वो डिक्टेट करें हमारा ओवरऑल आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। सो जैसे हम वेदर को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला उठाते हैं। वैसे ही थॉट्स को मैनेज करने के लिए क्या करना है? थॉट मैनेजमेंट टेक्निक सीखनी है। तो थोड़ा सीखते हैं, आइए देखते हैं कैसे थॉट्स को मैनेज कर सकते हैं। सो पहला स्टेप है कि नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको थॉट आ गया कि आई एम नॉट अ गुड नर्स, मैं तो अच्छी नर्स नहीं। तो क्या स्टेप नंबर 2 करेंगे इस थॉट को चैलेंज करने के लिए, चेंज करने के लिए? हम लोग एविडेंस एग्जामिन करेंगे। यानी कि जैसे कोर्ट में होता है ना, कोर्ट में आप कुछ भी बोल दे तो थोड़ा ना जज मान लेता है, वो एविडेंस मांगता है। तो इसी तरह से आप एविडेंस एग्जामिन कीजिए जज की तरह, कि ये थॉट तो चलो आ गया, आई एम नॉट अ गुड नर्स, बट व्हाट इज द एविडेंस दैट आई एम नॉट अ गुड नर्स? दोनों तरह के एविडेंस मिलेंगे, पॉजिटिव एविडेंस भी और कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस भी। यानी कि एविडेंस जो इस थॉट के फेवर में है, किस वजह से मुझे लग रहा है मैं गुड नर्स नहीं हूँ, उसको एग्जामिन कीजिए। हो सकता है मैंने मेडिकेशन डोजेज थोड़ा गलत दे दिया पेशेंट को। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस क्या है? आपको पेशेंट से इतना अच्छा फीडबैक मिलता है, आपको कॉलीग से अच्छा फीडबैक मिलता है, पेरेंट्स आपके बोलते हैं आप वंडरफुल वर्कर हैं, और आपने इतने कॉम्प्लेक्स केसेस पास्ट में मैनेज किए हुए हैं। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस अगेंस्ट दिस थॉट। नाउ द स्टेप नंबर 3 वुड बी, once you have identified कि what is the evidence against and in favor of this thought, third is alternate explanation. ये ये explanation तो आ गया कि I'm not a good nurse. What else can we say? We can say कि गलती सब करते हैं, I can learn from this experience. मैं अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकती हूँ। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न। एंड लास्ट स्टेप इज रीफ्रेम योर थॉट। थॉट्स को रीफ्रेम करो, इसी थॉट को, आई एम नॉट अ गुड नर्स को रीफ्रेम करो इन मोर बैलेंस्ड फॉर्म, बैलेंस्ड वे। आई एम अ डेडिकेटेड नर्स, cares about patients, and I can learn from my mistakes to become better. ठीक है, गलती हुई है मुझसे, लेकिन मैं इस मिस्टेक से सीखूंगी और बेहतर करने की कोशिश करूंगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। आप प्लीज इसको टेक अ नोट ऑफ दिस एंड प्लीज ट्राई टू एड्रेस दीज नेगेटिव थॉट्स दैट यू गेट इन योर हेड। ऑल ऑफ अस गेट इट, but we need to understand how we can modify. These thoughts are modifiable, we can do it. Now once we have learned to manage the thoughts, the next is to manage emotions. इमोशनल मैनेजमेंट जो है बहुत ही जरूरी है, इट्स वन की टू इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो क्या फर्स्ट स्टेप है मैनेज इमोशंस को मैनेज करने का? पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले तो मैम, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो? उमा गांधी मैम, या थैंक्स। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड नेम द इमोशन। यानी कि जो इमोशन आप फील कर रहे हो उसको समझो और उसको नाम दो। कैसे करेंगे ये? तो बड़ा ही सिंपल सा एक टूल है जिसको हम प्लचिक्स व्हील बोलते हैं ऑफ इमोशंस। ये इस व्हील को आप यूज कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल सा लिस्ट ऑफ इमोशंस डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से।
तो अगर आप सैड है, सैड की लिस्ट में से समझो कि मैं क्या हूँ, वीपी हूँ, या मैं क्रश्ड हूँ, या मैं डिजेक्टेड फील कर रहा हूँ, अपसेट हूँ, क्या हूँ, एग्जैक्ट इमोशन को नेम करने की कोशिश करो। तो इंस्टेड ये कहने के आई एम सैड, से दैट आई एम अपसेट और आई एम हैवी टुडे। एग्जैक्ट इमोशन आइडेंटिफिकेशन। वंस आपने इमोशन को नाम दे दिया, अब हम कुछ स्टेप्स कर सकते हैं टू चेंज, टू मॉड्यूलेट दैट इमोशन। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, एंग्री आप फील कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? वर्कआउट कीजिए, डांस कीजिए, मूव योर बॉडी, उससे आपका एंगर रिड्यूस होगा। देयर आर रिसर्चेस टू सपोर्ट दिस। अगर आप एंशियस फील कर रहे हो, तो डीप ब्रीदिंग कीजिए, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उससे ट्रिगर होगा। सैड फील कर रहे हो, जर्नल करो, हल्का फील करोगे, थॉट्स को लिख दो एक पेपर पे, इमोशंस को लिख दो। गिल्टी अगर आप फील कर रहे हो, तो थोड़ा सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस। सिमिलरली, अगर लोनलीनेस है तो कॉल अ फ्रेंड, डिस्गस्ट है तो विजुअल डिटैचमेंट कीजिए, अपने आप को डिटैच कीजिए इमोशन से। सो इन ऑर्डर टू डील विद दीज नेगेटिव इमोशन सक्सेसफुली, सबसे पहला है कि अपने इमोशंस को पहचानिए, अपने आप से जुड़िए, कनेक्ट कीजिए खुद से, और आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं कौन सा इमोशन फील कर रही हूँ। अगर आपने इमोशन समझ लिया कि कौन सा है, तो आप उसको डील करने का तरीका भी हम लोग निकाल लेंगे। नाउ लेट्स टेक अ मोमेंट एंड हम लोग सब मिलके अभी एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे विच इज कॉल्ड 4-4-4 बॉक्स ब्रीदिंग मेथड। जैसे जैसे हम ये वीडियो देखेंगे, देयर विल बी बॉक्स, एक बॉक्स मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें वर्टिकल लाइन मूव हो रही है। तो जैसे वो वर्टिकल लाइन ऊपर जाएगी, आपको इनहेल करना है डीपली फ्रॉम योर नोज, और उसके बाद जब वो हॉरिजॉन्टली मूव होगी, तो आपको होल्ड करना है, वो सांस को रोक के रखना है। जब वो वर्टिकल लाइन नीचे आएगी, तो आपको एक्सेल करना है माउथ से, फिर दोबारा होल्ड करना है, एंड दोबारा जैसे वो वर्टिकल लाइन ऊपर जा रही है, इनहेल, हॉरिजॉन्टल जा रही है, होल्ड, अगेन नीचे आ रही है, एक्सेल, फिर होल्ड। विल डू इट टुगेदर। चलिए, मैम स्क्रीन ना दिख नहीं रही है। अभी दिखा रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, ओके। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। Vertical line goes up, we will inhale. Inhale through your nose. Hold. Exhale from your mouth. Hold. फिर से करेंगे। Inhale when the vertical line goes up. Hold and exhale from your mouth. Let's do it together one more time. तो अभी हमने डिस्कस किया सेकेंडरी स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें हमने समझा कि स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज करना, एक्सेप्ट करना कितना जरूरी है, कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है, इमोशन फोकस्ड, प्रॉब्लम को बदल सकते हो तो प्रॉब्लम को बदलो, वरना उसकी तरफ हमारे रिएक्शन को हम बदल देते हैं। कॉग्निटिव में हमने समझा कि थॉट्स को कैसे हम चैलेंज कर सकते हैं। सिमिलरली, इमोशनल मैनेजमेंट में हमने सीखा कि इमोशंस को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं। एंड फाइनली, द लास्ट इन सेकेंडरी मैनेजमेंट इज काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब है, अगर आपको लगता है कि आपने ये स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स ट्राई करी हैं पास्ट में एंड नथिंग हैज बीन हेल्पफुल, then there is no harm in consulting a professional. Go for a few sessions, give it a chance. बहुत सारा स्टिग्मा इन्वॉल्व है मेंटल हेल्थ को लेकर, लेकिन आपको मैं एक चीज और बता दूं कि हेल्प सीकिंग बिहेवियर जो है वो एक्चुअली इंटेलिजेंस के साथ उसका बहुत हाई कोरिलेशन है। तो काउंसलिंग को यू शुड डेफिनेटली गिव इट ट्राई। इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। इट ऑफर सेफ कॉन्फिडेंशियल स्पेस टू डिस्कस योर स्ट्रेस, एंड आप गेन करें, बहुत इंसाइट आपको मिलेगा काउंसलिंग में जाने से। आप समझेंगे कि क्या सोर्सेज है मेरे स्ट्रेस के, कैसे मुझे इसको हैंडल। सो दिस कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन। नाउ वी आर कमिंग टू द फाइनल टर्चरी मैनेजमेंट, विच इज अ लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन।
सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट मेडिकेशन एंड थेरेपी। स्ट्रेस जो है बहुत कॉमन पार्ट है लाइफ का। अगर थोड़ी बहुत मेडिकेशन लेने से न्यूरोकेमिकल्स हमारे बैलेंस हो रहे हैं, ब्रेन के मूड इंप्रूव हो रहा है, स्ट्रेस कम हो रहा है, एंजाइटी कम हो रही है, तो क्या हम, अगर हेल्प अवेलेबल है, क्यों सफर करना है? थेरेपी लीजिए, सेफ स्पेस है। स्ट्रेसर्स को एक्सप्लोर कीजिए, कोपिंग स्ट्रैटेजीज को समझिए। और अगर कोई अनरिजॉल्व ट्रॉमा है, कोई रिलेशनशिप इशू है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, फोबिया, पैनिक, यू कैन डेफिनेटली टेक बेनिफिट ऑफ थेरेपी। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी थेरेपी इज अ ग्रेट ऑप्शन। तो अगर ऐसा कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं भी है, तो आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए थेरेपी दे सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि कोई स्ट्रगल कर रहा है या आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट हेजिटेट, लेट्स ब्रेक दिस स्टिग्मा एंड आज ही स्टेप लीजिए। ये ब्रेव स्टेप है। हेल्प सीकिंग जो है बहुत ही इंटेलिजेंट बिहेवियर है। तो प्लीज लेट्स स्टार्ट। इफ यू आर सफरिंग, डोंट सफर प्लीज। नेक्स्ट इज रिहैबिलिटेशन। सो रिहैबिलिटेशन जो होता है बेसिकली, वंस वी रिकवर फ्रॉम आवर डिफिकल्टीज, टू रीइंटीग्रेट इन द सोसाइटी। वापस से हमें वर्क प्लेस पे जाना है, तो दोबारा जाने से पहले कोई स्किल सीखना है, सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करना है, या कोई हाउसिंग को हमें चेंज करना है बिफोर वी गेट बैक टू द वर्क प्लेस, या घर में हमें वापस जाना है आफ्टर डी एडिक्शन प्रोग्राम। तो रिहैबिलिटेशन टेक्स केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट। सो फॉर दिस वी हैव टू कनेक्ट विद अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। फाइनली विल टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, फिलोसफी। बहुत सारे लोगों को शायद ये पॉइंट नहीं पसंद आए, रिलीजन का, स्पिरिचुअलिटी का, लेकिन बहुत सारा रिसर्च है जो कहता है कि अगर जो लोग स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, या जो रिलीजियस रिलीजियस लोग हैं, उनको एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग डायग्नोसिस से डील करने में आसानी रहती है। जैसे कि अगर किसी को कैंसर का डायग्नोसिस मिलता है, तो दीज पीपल आर एक्चुअली दे आर रिपोर्टिंग लेसर लेवल्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन डिस्पाइट सच अ ह्यूज डायग्नोसिस। उनका ग्रेटर इमोशनल वेलबींग होता है, ग्रेटर सेंस ऑफ पर्पस होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमारा इंप्रूव होता है। सो बहुत ही जरूरी है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को हम इनकॉर्पोरेट करें। थोड़ा सेंस ऑफ पर्पस देता है, कनेक्शन इंप्रूव कराता है, हमारा सेंस ऑफ कनेक्शन होता है, ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव होती है। क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या किया जाए? दिया जलाइए, कैंडल जलाइए, प्रेयर्स ऑफर कीजिए, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी स्पिरिचुअलिटी से आप आइडेंटिफाई करते हैं, जस्ट ऑफर योर प्रेयर्स इन योर वे। चैंटिंग कीजिए, कोई भी मंत्र है या आपका कोई कुछ भी, आप श्लोक है, एनीथिंग दैट यू चैंट। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए, जो कि एक बुद्धिस्ट बेस्ड टेक्निक है, मेडिटेशन है। या फिर कोई भी इस तरह की जगह, टेम्पल, चर्च, मॉस्क या गुरुद्वारा, कोई भी इस तरह की जगह जहां पे आपके सेम बिलीफ सिस्टम के लोगों को आप मिल सकते हैं, वहां जाइए, विजिट कीजिए, कनेक्ट कीजिए उन लोगों के साथ। सो स्पिरिचुअलिटी, फिलोसफी, रिलीजन जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के वंडरफुल वेज है। हमारे रेजिलियंस को इंप्रूव करते हैं, ओवरऑल इमोशनल वेलबींग को इंप्रूव करते हैं। With this, we can, navigate through life challenges with grace and purpose. Now, as we near the end of our webinar, we'll take a moment and एक grounding technique practice करेंगे। ग्राउंडिंग जो है वो हमें हेयर एंड नाउ में जीना सिखाता है। देखो, थॉट्स का तो काम है, या तो आपको पास्ट के रिग्रेट्स में ले जाएगा, सैड कर देगा, या थॉट्स आपको फ्यूचर वरीज में ले जाएंगे, अरे कल वो मीटिंग है, कल 4 पेशेंट्स हैंडल करने हैं, कल एचओडी को जवाब देना है, या तो पास्ट में ले जाएंगे थॉट्स या फ्यूचर में। ग्राउंडिंग क्या कहता है? माइंडफुलनेस ग्राउंडिंग ये बोलता है कि हियर एंड नाउ में रहो। राइट नाउ 28 सितंबर, 5 बज रहे हैं, इस समय कोई समस्या बड़ी नहीं है लाइफ में, बहुत बड़ी कोई ऐसा चैलेंज या कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट इस पल को तो हम ना जाने दें, इस पल को तो हम जी लें। तो ग्राउंडिंग वही सिखाता है हमें। सो लेट्स टेक दिस मोमेंट एंड प्रैक्टिस ग्राउंडिंग टेक्निक। व्हाट वी हैव टू डू इज, आप सभी से मेरा निवेदन है, आप अपने आसपास देखिए और कोई भी 5 चीजों को आइडेंटिफाई कीजिए। कोई भी 5 चीजों की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे मैं अपने आसपास देख पा रही हूँ, तो एक बॉल है, टेबल है, एक वॉच है, एक एसी है, एक अलमीरा है। इसी तरह आप अपने आसपास कोई भी 5 चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। नाउ नोटिस एनी 4 थिंग्स दैट यू कैन फील। कोई भी 4 चीजें जिनको आप अपने हाथ में फील कर सकते हैं। तो पेन हो सकता है सिंपली, तो पेन का कैसा टेक्सचर है, प्लेन है या क्या है, उसका टेम्परेचर कैसा है, गर्म है, ठंडा है, कैसा है। इसी तरह कोई भी 4 चीजें आप लीजिए, उनका टेक्सचर और टेम्परेचर फील कीजिए अपने हाथ में। एनी 4 थिंग्स। टेक अ मोमेंट एंड लिसन टू 3 थिंग्स दैट यू कैन हियर। 3 चीजें जो आप सुन सकते हैं। साइलेंस करेंगे, 3 चीजें जो आप सुन सकते हैं। एनी 3 थिंग्स। नाउ आइडेंटिफाई 2 थिंग्स दैट यू कैन स्मेल। एनीथिंग, अगर
कोई आपके पास, आपने परफ्यूम पहना है, उसको स्मेल कीजिए। आपके रूम का स्मेल स्मेल कर सकते हैं आप। या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपने वियर किया है। एनी टू स्मेल्स। अगर नहीं कुछ आ रहा है तो आप अपने फेवरेट परफ्यूम का स्मेल याद कीजिए। एंड लास्टली, वन थिंग दैट यू कैन टेस्ट। पानी है तो पानी का सिप ले लीजिए और उसका टेस्ट आपके माउथ में आ रहा है, गले में कैसे उतर रहा है, उसको फील कीजिए। अगर कुछ भी नहीं है आसपास, तो जो भी लास्ट चीज आपने खाई थी या पिया था, उसका टेस्ट, उसका आफ्टर टेस्ट फील कीजिए अपने माउथ में। तो whenever you are feeling overwhelmed, ये ग्राउंडिंग सिंपल टेक्निक है, 5 4 3 2 1, इंटरनेट पे भी इजीली आपको मिल जाएगी ग्राउंडिंग टेक्निक। ये आपको प्रेजेंट के साथ रिकनेक्ट करने में हेल्प करेगा। थॉट्स की जो चेन बनती है, कई बार ओवर थिंकिंग होता है, उसको कट डाउन करने में भी ये बहुत हेल्प करेगा। सो नाउ विल मूव ऑन टुवर्ड्स एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत केयरिंग है। ट्रूली कमेंडेबल काम आप करते हैं सभी। एंड बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए केयर करने के लिए भी टाइम निकालें। तो चाहे डीप ब्रीदिंग है, चाहे रीडिंग है, या सिंपली एक मोमेंट ऑफ पॉज है, ग्राउंडिंग करना है, या सिर्फ 2 सेकंड अपने आप के साथ बिताना है, 2 मिनट अपने आप के साथ बिताना है। सिंपल चीजें कीजिए, लेकिन अपनी इमोशनल वेलबींग, अपनी वेलबींग की तरफ प्लीज ध्यान देना शुरू कीजिए। एंड दीज आर द टेक अवेज फ्रॉम टुडेज प्रेजेंटेशन। Take care of sleep, nutrition, activity level. Thoughts are just thoughts, they are not facts. If we cannot change the situation, we should change our reaction towards it. Improve your social support, practice spirituality. Help seeking is a sign of courage. Any questions, please go ahead. Yeah, good evening, everyone. It has been such an honor to be part of this session, this wonderful session, I'd like to say. On behalf of the organization, I'd like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed expert for the evening, Dr. Tanuja ma'am. Thank you so much. Sincere thanks to the team of our counselor who handled the event throughout. Thanks to all the participants who made the event a memorable one. Finally, I would like to thank all of you present here for making the time to be with us today and helping us making the event grand success. Thank you one and all. Thank you. Thank you so much, Palmi ma'am. Thank you so much, Mehak. Thank you so much, Vikram. And thank you to all of you for joining, and thanks for having me. It was a wonderful talk. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you.